Hello students, welcome to PYQ series. Today we are going to discuss chapter gravitation episode 2. आज हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो JEE मेंस अप्रैल 2023 में आए हैं बेस्ड अपॉन दीज 4 टाइप्स: केपलर्स लॉज, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा. This question came in 6th April, first shift 2023 examination. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: Earth has atmosphere whereas Moon doesn't have any atmosphere. Reason R: the escape velocity on Moon is very small as compared to that on Earth. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. Option A: both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Option B: both A and R are correct, but R is the correct explanation of A. Option C: A is true, but R is false. Option D: A is false but R is true. Students, assertion A: Earth has atmosphere whereas Moon doesn't have any atmosphere. This is definitely true. Yes. Reason R: escape velocity on Moon is very small as compared to that on Earth. This is also true. करेक्ट है बेटा. असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है एंड जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो द आंसर की शुड बी ऑप्शन बी. स्टूडेंट्स, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के लिए? यस, टेल मी. इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी फॉर सरफेस ऑफ मून? टेल मी. It's 2.38 kilometer per second. So can I say students, escape velocity जो है मून के सरफेस के लिए it is very less as compared to that of escape velocity on the surface of the earth. तो यही तो स्टेटमेंट गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में. अच्छा, if you want that a particular gas should escape from particular astronomical body का surface, so उसका जो RMS velocity है ना बेटा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इट शुड बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी. सही है. तो अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा है तो VRMS उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है. तो अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर है. अच्छा, मून के सरफेस पे बेटा VRMS से जो V एस्केप है वो कम पड़ जा रहा है. जो V एस्केप है वो कम पड़ जा रहा है. दैट मीन्स RMS वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी को डोमिनेट कर रहा है. सो जो गैस है वो एस्केप कर रहा है मून के सरफेस से. सो दैट्स वाई मून के सरफेस पे गैस एस्केप हो गया सर, तो वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है. वेराज अर्थ के सरफेस पे गैस एस्केप नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है. करेक्ट है बेटा. आप समझिए. आप क्यों मैं ऑप्शन बी चूज़ कर रहा था. बोथ A and R are correct, but R is the correct explanation of A. That's why हम जा रहे थे ऑप्शन बी के साथ. ओके, यू अंडरस्टैंड. दिस क्वेश्चन केम इन 6th April, second shift 2023 examination. Choose the incorrect statement from the following. A: the linear speed of a planet revolving around the sun remains constant. B: the speed of satellite in a given circular orbit remains constant. C: when a body falls towards Earth, the displacement of Earth towards the body is negligible. D: for a planet revolving around the sun in an elliptical orbit, the total energy of the planet remains constant. Students, आपको incorrect statement पता करना है. Okay? So, what about A? The linear speed of a planet revolving around the sun remains constant. बेटा यही incorrect हो गया. हम जानते हैं जो V होगा उसका R के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये कांस्टेंट है. ये हमने सीखा है अंडर द हेडिंग केपलर सेकेंड लॉ फॉर प्लानिटरी मोशन. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. दैट्स व्हाई V इनटू R इज अ कांस्टेंट. एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, सुना है बच्चों आपने ये. व्हेन अ प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन
it is fastest, and when the planet is farthest from the sun it is slowest. Okay, so that means student जो स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट है और वही आपको पूछा है. स्टेटमेंट ए में दिया है कि जो v है वो कांस्टेंट है, बट ये तो गलत है ना सर, v तो r के साथ वेरी करने वाला है, दैट टू इनवर्सली. ओके, फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम और 3 ऑप्शंस देख लेंगे बेटा. व्हाट अबाउट बी? द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट. यस सर, दिस इज ट्रू. इन वन पर्टिकुलर ऑर्बिट स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगा सैटेलाइट का. व्हाट अबाउट सी? व्हेन अ बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द बॉडी इज नेग्लिजिबल. करेक्ट है, ट्रू है. अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा है बेटा, तो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट काफ़ी छोटा होगा जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे. वेरी गुड. व्हाट अबाउट डी? फॉर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट total energy of the planet remains constant. Yes sir, total energy will remain constant. So B, C, D all 3 are true. So A is your answer. जो false है तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन A. Are you following this students? Okay. This question came in 8th April first shift 2023 examination. Given below are 2 statements. Statement 1. If E be the total energy of a satellite moving around the earth, then its potential energy will be E by 2. Statement 2. The kinetic energy of a satellite revolving in an orbit is equal to half of magnitude of total energy E. Okay. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. A. Both statement 1 and 2 are incorrect. B. Statement 1 is correct but 2 is incorrect. C. Statement 1 and 2 both are correct. And D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Students, statement 1 में क्या given है? Total energy is E. Okay. And potential energy is E by 2. Statement 2. Total energy is again E and kinetic energy is equal to its half, that means E by 2. करेक्ट है. स्टूडेंट्स यू टेल मी ना, ट्रू है या फॉल्स है दोनों? ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है. ऐसा रहेगा तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ. स्टूडेंट्स फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इस क्वेश्चन में वो लोग नाम दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ जी कैपिटल एम छोटा एम बाई छोटा आर. करेक्ट है. एंड फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी होगा स्टूडेंट्स 1/2 जी कैपिटल एम छोटा एम डिवाइड बाई छोटा आर. आर यू फॉलोइंग द स्टूडेंट्स? सो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी क्या होगा? यस, इन दोनों का एडिशन होगा. ये प्लस हाफ है, वो -1 है, मिलके हो जाएगा -12 जी कैपिटल एम छोटा एम डिवाइड बाय आर. आप ही बताइए स्टूडेंट्स, ये जो E/2 का लॉजिक है वो सही बैठ रहा है क्या? टोटल एनर्जी का अगर आप हाफ करोगे तो स्टेटमेंट नंबर 1 के हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी. बेटा इसका हाफ करिए, यू विल गेट -1/4. यहाँ -1/4 है क्या? नहीं है. दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है. आर यू फॉलोइंग दिस बेटा? एंड व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? टोटल एनर्जी E है. ओके सर, काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ है, चेक कर लीजिए आप खुद. बेटा दिस इज द टोटल एनर्जी, इसका हाफ करिए, यू विल गेट -1/4. ना 1/4 है ना माइनस है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. आर यू फॉलोइंग दिस स्टूडेंट्स? सो आंसर क्या चूज करोगे आप? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, सो यू कैन गो विद ऑप्शन ए बेटा. दैट्स योर आंसर. ओके, समझा आपको कैसे करना है इसको? This question came in 8th April second shift 2023 examination. The orbital angular momentum of a satellite is L when it is revolving in a circular orbit at height h from Earth's surface. If the distance of satellite from Earth's center is increased by 8 times to its initial value, then the new angular momentum will be option A 8L, B 4L, C 3L and option D is 9L. Students, angular momentum is L. ये आपको given है. When it is revolving, when a satellite is revolving in a circular orbit at height h. अच्छा, अब आपने डिस्टेंस को 8 टाइम्स इंक्रीज किया. करेक्ट है. स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए,
How can we find out angular momentum in general? Yes, it is mvr. You are fine with this? Angular momentum is mvr, correct है बेटा. m is mass of satellite जो घूम रहा है, r is the orbital radius, v is the velocity जिससे satellite घूम रहा है, called as orbital velocity, also called as critical velocity, correct है. Students, what is the formula for critical velocity? Tell me. It is under root of gm by r. ये मालूम है अपने को. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम L will be m multiplied by under root of gm r square divided by r. You are following बेटा? ये r को मैंने अंदर रूट के अंदर ट्रांसफर कर दिया. So this r will cancel out. तो L हो जाएगा m under root of gm r. Now, as per the data given to you, distance you are increasing by 8 times. That means distance is becoming total 9 times. Beta, what is square root of 9? 3. So L is directly proportional to square root of R. R is becoming 9 times. So L will become 3 times. 3 times. Yes, sir. What is initial L ka value given to you? It is L, right? So what is the final value? 3 times of L. 3L, sir. So this should be matching with 3L. That is C. Okay. This question came in 10th April, first shift 2023 examination. Two satellites of masses m and 3m revolve around the Earth in circular orbits of radii r and 3r respectively. The ratio of orbital speeds of the satellites respectively is option A 9:1, option B √3:1, option C 3:1, option D 1:1. Students, for two different satellites, क्या मास गिवन है उनका? m and 3m. ओके. उनका जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है वो है r and 3r, करेक्ट है? ओके. ओके. सो स्टूडेंट, दिस इज m1 m2 ऐसा कंसिडर कर लेते हैं. सैटेलाइट का मास है m1 m2, वही दो सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस रहेगा r1 r2, करेक्ट है? ओके. वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड. बेटा, ऑर्बिटल स्पीड ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल स्पीड, उनका रेशियो पूछा जा रहा है आपसे. क्रिटिकल स्पीड 1 डिवाइड बाय क्रिटिकल स्पीड फॉर सैटेलाइट 2, VC1 डिवाइड बाय VC2 इज क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन critical speed? Tell me. It is under root of gm by r. Yes, capital G is universal gravitational constant, capital M is mass of planet. Please take care of this. ये जो मास आपको दिख रहा है ये सैटेलाइट का मास नहीं है बेटा जो घूम रहा है. दिस इज मास ऑफ द प्लैनेट. ओके. एंड छोटा r इज द ऑर्बिटल रेडियस. तो आपको समझा स्टूडेंट्स, ये जो VC है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट. छोटे m पे ये डिपेंड करता ही नहीं है. मतलब दिस डेटा इज नॉट यूजफुल टू यू. ओके. आप ये फॉर्मूला देख के लिख सकते थे VC1 डिवाइडेड बाय VC2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1, सर. So that is equals to under root of R2 by R1, that is 3R divided by R, that will give you √3 बेटा. तो आपका आंसर होना है √3:1. Okay, and this is going to match with √3:1, option B. Correct है बेटा? √3:1, the answer should be B. Okay. This question came in 10th April, second shift 2023 examination. The time period of a satellite revolving above Earth's surface at a height equal to capital R will be, it is given that G is equals to pi square meter per second square and capital R is radius of Earth. आपके ऑप्शंस है ऑप्शन A √2r, ऑप्शन B √32r, ऑप्शन C √4r, ऑप्शन D √8r. ओके. सो टाइम पीरियड डिमांड किया जा रहा है स्टूडेंट्स. ओके. Time period T is question mark of a satellite revolving above Earth's surface at a height is equals to radius of Earth, capital R. Okay, you understand? Students, you tell me time period का in general expression क्या होगा? Time period of a satellite around the surface of the Earth, T, capital T is given by the formula 2 pi under root of R cube divided by gm. Yes. Capital M is mass of planet, capital G universal gravitational constant, R is the orbital radius,
जिसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स रेडियस प्लस हाइट h. एज पर द डेटा h इज इक्वल्स टू रेडियस, सो r प्लस r विल गिव यू 2r. तो छोटा r विल मैच विद 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R. सो टाइम पीरियड हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ r का आप क्यूब करोगे, सो इट इज 2r द होल क्यूब डिवाइडेड बाय gm. यस स्टूडेंट्स, छोटू जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता है? इट इज gm डिवाइड बाय r स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, छोटू जी gm बाय r स्क्वायर. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू नाउ 2 pi as it is under root of, this will become 8r cube, right, divided by gm. Students, what is gm? छोटू g multiplied by radius का square. gm is छोटू g multiplied by radius का square. So ये हो जाना है 2 pi as it is square root of 8 by g. r square will cancel out, आपको r मिल जाएगा. Okay, now students, ये pi and ये root g cancel out हो जाएगा. पाई विल कैंसल आउट विद रूट जी, करेक्ट है. सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 को मैं रूट के अंडर भेजूंगा, इट बिकम्स 4 इंटू 8 इज 32. आर तो पहले से ही है, तो ये टाइम पीरियड टी हो गया स्टूडेंट्स, कैपिटल टी टाइम पीरियड हो गया अंडर रूट ऑफ 32 टाइम्स ऑफ रेडियस, करेक्ट है स्टूडेंट्स. सो दिस इज गोइंग टू मैच विद अंडर रूट ऑफ 32 टाइम्स ऑफ रेडियस. ऑप्शन बी, योर आंसर इज ऑप्शन बी. आर यू फॉलोइंग दिस बेटा? यस. This question came in 11th April, second shift 2023 examination. A spaceship of mass 2 times of 10 raised to 4 kilogram is launched into a circular orbit close to the Earth's surface. The additional velocity to be imparted to the spaceship in the orbit to overcome the gravitational pull will be how much if g is 10 meter per second square and radius of Earth आप भी जानते हो दिया भी है 6400 किलोमीटर. ऑप्शन ए 8 इंटू रूट 2 माइनस 1 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 7.9 इंटू रूट 2 माइनस 1 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 7.4 इंटू रूट 2 माइनस 1 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी 11.2 इंटू रूट 2 माइनस 1 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, जो स्पेसशिप है ओके वो ऑलरेडी मूव कर रहा है वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, करेक्ट है. इट इज़ मूविंग, इट इज़ ऑर्बिटिंग. सो आई थिंक वो घूम रहा है ऑलरेडी विथ क्रिटिकल वेलोसिटी वी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी आप इसे कहते हो, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सर जी एम बाय आर. ये मालूम है आपको? यस. ओके, अब बोला है वेरी क्लोज, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाई स्टूडेंट्स व्हाट इज यूजुअली छोटा आर रेडियस प्लस हाइट एच. अब यहाँ पे h को आपको नेग्लेक्ट करना है तो आप इसको कैपिटल R से रिप्लेस कर सकते हो. दिस इज अप्रॉक्सीमेशन ना बेटा, ठीक है ना, एज इट इज गिवन दैट वेरी क्लोज ना. सो h इज वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ. यस. अब आप चाहते हो कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर ले, मतलब आप उसे कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करना चाहोगे? यस, इट इज एस्केप वेलोसिटी. बेटा कितना होता है एस्केप वेलोसिटी? वैल्यू मैंने फ्यू मिनट्स अगो आपको बताया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. बट फॉर्मूला क्या होगा? इट इज अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइड बाय r, कैपिटल R. यस स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट? तो VE यानी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ gm बाय कैपिटल R विच इज नथिंग बट VC ओवर हियर. यस. अब जो एस्केप वेलोसिटी होता है स्टूडेंट्स वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो एस्केप वेलोसिटी स्टूडेंट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, करेक्ट है. सो व्हाट विल बी क्रिटिकल वेलोसिटी? 11.2 डिवाइड बाय रूट 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड. आर यू फॉलोइंग दिस स्टूडेंट्स? तो आपको जो वेलोसिटी प्रोवाइड करना है दैट इज VE माइनस VC. यस, VE माइनस VC. VC ऑलरेडी उसके पास है, आप उसे कितना देना चाहते हो VE, तो आपको एक्स्ट्रा कितना सप्लाई करना पड़ेगा? VE माइनस VC. सो डेल्टा V यू नीड टू सप्लाई, करेक्ट है. अब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें आगे सॉल्व करना है बेटा. अच्छा, मैं देख रहा हूँ सब में कांस्टेंट दिया हुआ है 8 रूट 2 7.4 7.9 11.2. ओके सर, तो आप क्या करिए बेटा, आप ये VE को लिख दीजिए
√2 टाइम्स ऑफ वीसी, माइनस वीसी कॉपी पेस्ट होगा. सो आप वीसी कॉमन ले लीजिए, इनसाइड द ब्रैकेट यू आर गेटिंग √2 - 1. करेक्ट है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीसी अप्रॉक्सीमेटली हियर? इट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? सो इट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1. दैट्स इट. अगर और बोला होता तो आप √2 सब्सटीट्यूट कर सकते थे, 1.414, बट दिस मच इज फाइन हियर. सो इट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1 किलोमीटर पर सेकेंड. दैट्स वाई द आंसर शुड बी ए. यस, आपको समझा बेटा कैसे सॉल्व करना है इसको पूरा? दिस केम इन 12th April 1st shift 2023 paper. The ratio of escape velocity of a planet to the escape velocity of Earth will be: mass of planet is 16 times mass of Earth and radius of planet is 4 times the radius of Earth. Okay, so we have to find out, sir, escape velocity का ratio. Okay, escape velocity of planet divided by escape velocity of Earth. Correct है? डेटा बताइए आप मुझे. मास ऑफ प्लानट कैपिटल है ना बेटा, मास ऑफ प्लानट इज 16 टाइम्स मास ऑफ अर्थ. ओके, एंड रेडियस ऑफ प्लानट RP इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस मतलब कैपिटल R. ओके, रेडियस ऑफ द प्लानट. ओके, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल. स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो? अंडर रूट ऑफ, यस सर, 2gm/r, कैपिटल R. करेक्ट है स्टूडेंट्स? इसको आप रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाना चाहिए. तो बेटा ये होगा एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, प्लैनेट डिवाइडेड बाय अर्थ. ओके, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 कांस्टेंट, रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट इज कैपिटल G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा. आप लिखना mp डिवाइड बाय me, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस इनवर्स है बेटा, तो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट. करेक्ट है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, दैट्स इट. बेटा ये होगा mp अपॉन me. mp डिवाइड बाय me विल गिव यू 16. ओके, इनटू re डिवाइड बाय rp. re डिवाइड बाय rp विल बी 1/4. re डिवाइड बाय rp इज 1/4. सो दिस विल बी √4. यस, सो √4 विल गिव यू 2. सो आंसर होगा बेटा आपका 2:1, दैट इज 2/1. सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइड बाय अर्थ इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 1 एंड द ऑप्शन शुड बी D. यस, इजी है. दिस क्वेश्चन केम इन 12th April 1st shift 2023 paper. 2 satellites A and B move round the earth in the same orbit. The mass of A is twice the mass of B. The quantity which is same for both satellites will be: A, speed; B, potential energy; C, total energy; D, kinetic energy. So students, the 2 satellites A and B, right, are moving in same orbit. So R जो ऑर्बिटल रेडियस है वो दोनों सैटेलाइट्स के लिए सेम है, RA इज इक्वल्स टू RB. बट मास उनका डिफरेंट है सर. मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m लेना पड़ेगा आपको. MA इज 2 टाइम्स ऑफ MB. ओके सर, सो कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा? स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, स्पीड से स्टार्ट करते हैं. स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड मतलब क्रिटिकल स्पीड जिससे वो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है. ओके, सो VC विल बी स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ gm/r. करेक्ट है बेटा? स्मॉल r दोनों के लिए सेम है ना. कैपिटल M इज मास ऑफ प्लैनेट, वो भी दोनों सैटेलाइट के लिए कॉमन प्लैनेट है. कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो जो VC है ना बेटा, वो छोटे m पे डिपेंड करता नहीं है और छोटा m ही आपको अलग दिया है, बाकी सब तो सेम है. तो जो VC है वो दोनों सैटेलाइट के लिए कैसा रहेगा? सेम. सो VC सर जी, VC यानी स्पीड विल बी द सेम. सो यू ऑलरेडी गॉट द आंसर. द आंसर विल बी ऑप्शन ए बेटा. दैट्स योर आंसर. बट फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए ही तो ये सेशन अरेंज किया है, तो मैं आपको वो जो एनर्जी है वो भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल r. करेक्ट है? हाउ टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी बेटा? हाफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई छोटा r. एंड टोटल एनर्जी आप भी जानते हैं, इन दोनों को प्लस करके मिल जाना है, माइनस हाफ G कैपिटल M स्मॉल m बाई छोटा r. बेटा यू आर फाइन विद दिस.
आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आर भी है और छोटा एम भी है, एंड छोटा एम इज मास ऑफ सैटेलाइट। तो अगर सैटेलाइट का मास अलग है, मतलब ये तीनों जो एनर्जी होगा वो भी अलग रहेगा दोनों का। आप समझे बेटा, जो वीसी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मास डबल है या ट्रिपल है इससे वीसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सो वीसी विल बी सेम फॉर बोथ द सैटेलाइट्स, एंड दैट्स वाई स्पीड ए में दिया है। यस सर, वी आर गोइंग विथ इट, ईजी है। दिस क्वेश्चन केम इन 13th April first shift 2023 examination. A planet having mass 9 ME and radius 4 RE, where ME and RE are mass and radius of Earth respectively, has escape velocity in kilometer per second given by. It is given that escape velocity on Earth is VE is equals to 11.2 into 10 raised to 3 meter per second. ओके, ये आप भी जानते थे, ठीक है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 11.2, बी 16.8, सी 67.2, डी 33.6। स्टूडेंट्स, मास ऑफ दैट प्लैनेट, लेट मी कंसिडर दैट एज MP is 9 times of ME, करेक्ट है। मास ऑफ प्लैनेट इज 9 times of mass of Earth, and radius of that planet RP is 4 times of radius of Earth, ठीक है ना। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट इस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, करेक्ट है स्टूडेंट्स। वी हैव टू डू कंपैरिजन एस्केप वेलोसिटी बिटवीन दिस प्लैनेट एंड अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी, टेल मी। VE is equals to अंडर रूट ऑफ 2gm/r, करेक्ट है। यस स्टूडेंट्स, इसको देखकर आप मुझे बताइए रेशियो ऐसा बनेगा, एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी फॉर आवर अर्थ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g, कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, बट रेडियस तो इनवर्स में है, सो रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, ओके, दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ MP डिवाइड बाय ME. MP डिवाइड बाय ME विल गिव यू 9 मल्टीप्लाइड बाय RE डिवाइड बाय RP. स्टूडेंट्स, RE डिवाइड बाय RP इज 1/4, करेक्ट है। सो सिंप्लीफाई करना है बस, स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट अवेलेबल है सर, दिस विल बी 3/2। सो रेशियो हो गया स्टूडेंट्स 3/2, रेशियो इज 3/2। अच्छा, उनको वैल्यू चाहिए, नो प्रॉब्लम सर। सो एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट राइट विल बी इक्वल्स टू 3/2, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो ये ओवरऑल मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बेटा, ऑब्वियस, ओके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। दिस विल बी 16.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आर यू फॉलोइंग दिस? ओके, सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी, 16.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये वो प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी होगा जिसका हम यहाँ अर्थ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। This question came in 13th April, second shift 2023 paper. Given below are two statements. Statement 1. For a planet, if the ratio of mass of the planet to its radius increases, the escape velocity from the planet also increases. Statement 2. Escape velocity is independent of the radius of the planet. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. A. Both statement 1 and 2 are correct. B. Statement 1 is correct but 2 is incorrect. C. Statement 1 is incorrect but 2 is correct. And D. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Okay. Students, statement number 1 हमें बता रहा है for a planet if the ratio of mass right to its radius is increasing, escape velocity is also increasing, okay. And statement 2 है that escape velocity is independent of mass of the planet. बेटा ध्यान से, mass of the object, mass of the satellite नहीं, mass of the planet हम जिसको कैपिटल M लिखते हैं वो, तो escape velocity planet के इनफैक्ट हाँ, जो एस्केप वेलोसिटी है वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 2 के हिसाब से। सो आप बताइए ना स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी? रिसेंटली हमने कई बार यूज़ किया। यस टेल मी। एस्केप वेलोसिटी बेटा अंडर रूट ऑफ 2gm/r, सबको पता है ये।
कैपिटल M मास ऑफ द प्लैनेट, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, R कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो बेटा आप मुझे बताइए ना, इफ m/r इज इंक्रीजिंग कैन आई से VE विल ऑल्सो इंक्रीज। फॉर्मूला से समझ जाएगा आपको, ये वैल्यू बढ़ेगा तो एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगा। सो सर दिस स्टेटमेंट नंबर 1 राइट इज करेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 कह रहा है एस्केप वेलोसिटी जो है वो कैपिटल M यानी प्लैनेट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट ये तो गलत है सर, ये इनकरेक्ट हुआ। इन केस स्टूडेंट्स आई आस्क यू टू करेक्ट, आप कैसे करोगे? आप लिखोगे एक्चुअली है बेटा VE is inversely proportional to, in fact VE is directly proportional to square root of mass। अब चेक किया आपने, VE is directly proportional to square root of mass of planet। ये सही में हो रहा है और ये आपको गिवन है, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। सो कैसा कॉम्बो दिया है बेटा? 1 is correct right and 2 is incorrect। okay, correct and incorrect is given in option B बेटा। so आपका आंसर रहेगा ऑप्शन B। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स हमारे JEE मेंस का ये जो PYQ सीरीज चल रहा है उसका एपिसोड 2 कंप्लीट कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। दोनों एपिसोड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों एपिसोड देखना रहेगा बेटा, सो दैट आप सारे टाइप्स कवर कर सके फ्रॉम द चैप्टर ग्रेविटेशन और आपके सारे PYQs अप्रैल 2023 JEE मेंस के कवर हो जाए। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू बेटा, बाय।